Good morning, class. Today we'll discuss the next topic of the chapter, the Russian Revolution or Socialism in Europe. So, prior to this, we had discussed about the three categories of the people, that is, liberal, radical, and conservative. They were different from each other, and we have seen the characteristics, if we define them, what kind of uh, feeling they have or what they have done. So next to that topic, the is industrial society and social change. Now these political trends were sign of the new time. What political trends? We have seen the liberal, the radical, and the conservative. So these were in the society, means such kind of trends were taking place in one time. It was the political and social changes. Means सपोज करिए तीन तरीके की सोच विचारधाराएं एक समाज में है तो वो समाज कैसा होगा, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ ना कुछ चेंजेस या सम न्यू थिंग्स विल टेक प्लेस डेफिनेटली. So it was the time of profound social and economic change. Now here one word is social. Social, obviously the name social will society will change, and the economic changes. Here we are going to discuss means these three were of belonging to three different categories. We can say the higher rich and the middle class and the poor class, you can say. So it was the time when new cities came up and new industrialized reason developed, because here again we are discussing industrialization. Industrialization means like industries have been taking place in thorough Europe. So what is happening in that region we will see. So it was the time when new cities came up and new industrial reason developed, and the railways expanded and industrial revolution occurred. Industrial brought Industrialization brought men and women, children to factories. Now, one thing is important, and we have to take in care that children also coming means the need of or the demand of work and financial crisis. We have to see ki all the member, or you can say segment of society, they were pushing to the cities. Work hours often long, wages for the poor. Work hours often long, matlab working hours are long. Working hours means like generally the time of in factory should be 8 to 5, but here longer than that. So working hour, काम करने का जो period था, it was longer, and wages were poor, low wages, पैसा कम मिलता था. Unemployment was common, particularly during the time of low demand for industrial goods. Housing and sanitation were the problem since towns were growing rapidly, and liberals and radicals searched for solution of these issues. Now, it was happening with the poor, and the problem was faced by everyone, but who were seeking out the solution? The liberal and the radicals. So housing, sanitation were the problems. Is the town were growing rapidly. Liberals and radicals, these two classes. These two classes, the main classes that radical, they were searching out the solution of this problem. What kind of means like working hours, then wages. So here the picture we can see solutions, sorry, socialism in Europe and Russia, Russian Revolution. Almost all the industries were property of individual. Of individuals means individual का मतलब यहाँ पर है कि जो लोग सिंगल इंडस्ट्री लगा रहे थे, it's not the government part. Liberals and radicals themselves were often property of the owners.
लिबरल्स में भी जो लिबरल्स थे वो प्रॉपर्टी ऑफ ऑनर्स थे। ऑनर्स कौन है यहाँ पर? फैक्ट्री लगाने वाले। एंड एम्प्लॉयर्स, मतलब वो उनकी प्रॉपर्टी समझे जाते थे, जितना मर्जी जैसे मर्जी काम कराएंगे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल ventures, they felt that such efforts should be encouraged and that its benefit should be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated। उनका मानना क्या था? जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतने ही काम वाले होंगे और प्लस उन्हें उतना पैसा मिलेगा या फिर उनका स्टैंडर्ड अच्छा होगा, वो इस तरीके से सोचते थे। हैविंग मेड देयर वेल थ्रू ट्रेड, मतलब वो ही क्या कर रहे थे, जितने वर्कर्स थे वो उनको अमीर बनाते हैं। मतलब एक फैक्ट्री, एक इंडिविजुअल कब रिच होता है? जब उसकी फैक्ट्री अच्छे से चल जाए, लेकिन वो उसको उसका प्रॉफिट दे रहा है नहीं दे रहा है, दिस इज थिंकेबल क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट टू इट। सो ट्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल वेंचर्स, दे फेल्ट दैट एफर्ट शुड बी एनकरेज, की और एफर्ट करें, दैट इट्स बेनिफिट वुड बी अचीव्ड, जिससे उनको और फ़ायदा हो। एंड इफ़ द वर्कफोर्स इन इकोनॉमी वॉज हेल्दी, ठीक है, अगर ये मतलब ये हेल्दी है, जो काम करा रहे हैं, सिटीजन्स वर एजुकेटेड, अगर मतलब लोग पढ़े लिखे होंगे, काम करने वाले होंगे, तो क्या होगा? सोसाइटी चेंज होगी। अपोज टू द प्रिविलेजेस ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, इसके कुछ विरोध करने वाले भी थे। वो कौन थे? ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, मतलब इनसे पुरानी पहली जनरेशन। किनसे? जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हैड बाय बर्थ, वो बाय बर्थ जो रिच थे, एंड दे फॉर्मली बिलीव दैट द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स एफर्ट, वो ये तो सोचते थे ठीक है ये अच्छे से काम कर रहे हैं, लेबर एंड एंटरप्राइजेस, ठीक है, सबके बारे में वो सही तरीके से सोचते थे। इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर्ड, if freedom of individual was ensured, if the poor could labor, then those the capital could be operate without restraint। देखिए कितनी अच्छी बात है, मतलब वो किसके हित में सोचते थे? क्योंकि वो जन्म से ही रिच है, वो अभी नहीं बने हैं, ठीक है, उन्होंने अभी रिचनेस उनकी नहीं आई है। सो वो इस तरह से पक्का उनको विश्वास था कि ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स एंड लेबर एंटरप्राइजेस, लेकिन इफ़ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर्ड, इफ़ द पुअर कुड लेबर एंड दोज द कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, मतलब अगर वो काम करता है तो उसको वो कैपिटल भी उसके हिस्से में आनी चाहिए। एंड दे बिलीव द सोसाइटी वॉज डेवलप, उनको ये था कि ऐसा करने से कभी ना कभी सोसाइटी चेंज होगी। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रेलीड अराउंड द लिबरल, जो लोग चेंज होना चाहते थे वो लिबरल के आसपास रैली अराउंड का मतलब उनको सपोर्ट करने लगे। एंड रेडिकल्स को, मतलब रेडिकल और लिबरल दो ही ऐसे पार्ट दिखते थे सोसाइटी में, जो शायद किसी को लगता था हाँ ये अच्छा करेंगे, तो उनके आसपास लोग घूमने लगे, रैलीड करने लगे। एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और ऐसे ही पार्टी फॉर्म होने लगी, ठीक है, एक पॉलिटिकल ट्रेंड शुरू हुआ। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड, सब नेशनलिस्ट, अब एक इसमें और टर्म जुड़ा है, नेशनलिस्ट। अब नेशनलिस्ट कौन होता है? हु थिंक फॉर नेशन। अब नेशन के लिए सोचने वाले कितने लोग हैं? नेशन को नेशनलिस्ट सोचने वाले, मतलब हमारी एक अपनी आइडेंटिटी हो। दिस टर्म इज़ वेरी ब्यूटीफुल टर्म, नेशन। इन नेक्स्ट ईयर 10th क्लास यू विल स्टडी दिस टर्म नेशन। नेशन क्या है? हम कहते हैं ना आई एम नेशनलिस्ट, पेट्रियाटिक, तो उसमें हमारे कुछ चीज़ें हैं। क्या है? मेरा एंथम है, ठीक है, फिर मेरे सिंबल है, ठीक है, मेरी हाई पर्सनालिटीज़ हु हैव टेकन बर्थ इन माय कंट्री, ठीक है, उनके जो वैलेंट और उसको जो गैलेंट जो भी है, मतलब उनका नाम, शान शौकत, बहादुरी जो भी है, ये सब चीज़ों से, जैसे हम अशोका का एम्बलम उसके लायन यूज़ करते हैं, हमारे चक्र में है, ठीक है, करेंसी पे है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेशन को प्राइड दिलाएं। तो वो चीज़ें भी उसको नेशनलिस्ट कहेंगे, जो नेशन के लिए स्पेशली द पीपल हैव द फीलिंग। तो some nationalists, liberals and radicals wanted revolutions to put an end, वो ये चाहते थे कि नहीं एक क्रांति हो जिससे कि ये सब चीज़ें अंत में आए। टू काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1815, जैसे कि 1815 में एक रेवोल्यूशन से हुआ था। 1815 आप जानते हैं नेपोलियन का पीरियड था, ठीक है, नेपोलियन का था। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया दे बिकेम रेवोल्यूशनरीज, they became revolutionary and worked for overthrow existing monarch।
मतलब इस टाइम पर हम यहाँ अभी डायरेक्ट उस पॉइंट पे नहीं गए हैं कि क्यों ऐसा लोग सोच रहे हैं। ये एक मतलब एक एम्बिगस स्टोरी है अबाउट द किंग, एंड किंग इज यूज टू कॉल्ड जार इन रशिया। तो वहाँ पर भी लोग क्या थे, दे वर डिस्टर्ब फ्रॉम द डिस्पोटिक रूल ऑफ द किंग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए जैसे फ्रांस में हुआ, इटली में हुआ, जर्मन में हुआ, रशिया, and they became revolutionary and worked for overthrowing existing monarch. Nationalists talk of revolution and would create a nation where all citizens would get the equal right, would have equal rights. After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. तो ये हुआ था, इसमें एक थोड़ा सा स्टोरी और एक ऐड हो जाता है। जिसिपी मिज़ोनी का, हु द मेकर ऑफ इटली, and he was the person who started the, you can say, young India और यंग यूरोप करके उसने एक तरीके से कैंपेन और एक क्लब चलाए थे जिनमें क्या था, जनरली पीपल यूज टू कम टू लर्न हाउ टू मेक द कंट्री नेशन। ठीक है, वहाँ पर उन चीज़ों को चीज़ें सिखाई जाती थी और इसको एक तरीके से एग्जाइल भी कर दिया था कंट्री से, और फिर ये कुछ दिनों बाद लौटा तो पूरे यूरोप में इसका नाम अच्छा था। तो एन इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्स्पायर्ड विद अदर्स, यहाँ कॉन्स्पायर्ड इसलिए कहेंगे क्योंकि इसको एक अच्छी इमेज नहीं मिली थी, इसको एक प्रोवोकर या भड़काने वाला भी कहते थे। कौन? सिर्फ रूलर्स कहते थे और लोग नहीं। तो conspired with others to achieve in this in Italy. Nationalists elsewhere including India read his writing. तो उसके जो उसने जो लिखा, उसने जो बताया, it was inspired by most of the people, और इंडिया में भी इसका नाम हुआ। ठीक है, यहाँ तक हम इसको पढ़ते हैं। So today we have discussed about the industrial society and social change. Industrial society में we have discussed that what was happening in the factories, all the segment of society, poor people, children, or you can say youth, all were engaged। लेकिन एक ऐसी भी क्लास थी, एरिस्टोक्रेसी, वो ये बिलीव करते थे कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसको भी उसका बेनिफिट होना चाहिए, और वो ये मानते थे कि लेटर और सूनर द चेंज विल कम इन सोसाइटी। तो नेशनलिस्ट जो कुछ भी लोग थे, जहाँ उनको लगता था कि नई रिलीज होनी चाहिए, तो वो लिबरल और रेडिकल के फॉलोवर थे। तो यह नेशनलिस्ट भी निकल के आए क्योंकि उस टाइम पर दिस वाज द टाइम पीरियड ऑफ द नेशनलिस्टिक मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी टाइम था, तो लोगों ने सपोर्ट किया। ठीक है, सो टिल हेयर वी डिस्कस इज, for the next video we will discuss next segment coming of the socialism in Europe. Till then, thank you, have a nice day.